मास्क निकाल दीजिए सर। हाँ आप लोग तो मास्क पहन लो। तो यहाँ देखिए सर लास्ट में अरवा जी यहाँ है सर, यहाँ पर लास्ट सर, यहाँ पे देखिए। शुक्रिया। कितना है वर्ड पे? वर्ड पे मानना मैं देखा नहीं ये Today is the brightest evening, ladies and gentlemen. A humble request to all of you to kindly have your mobile phones in an inaudible mode, please. And what a great entry. The room seems to have brightened up with the presence of Sir. And of course, जब दबंग style में entry होती है, it has to be the one and only. Right from being an actor to a producer to a director, he's ruled the complete Indian film fraternity. Ladies and gentlemen, may I please request each and every one of you, हम सब उनका इंतजार कर रहे थे, कब से बैठे हैं यहाँ पर, बहुत ठंड लग रही है हमें. So I'm going to request you all to please stand together for our very young legendary actor, Mr. Arbaz Khan. Such an honor to have you here. यहाँ पर apologies that we didn't have music for welcoming you, and at the same time, you know, you just came here so much on. Let us please applause. Ladies and gentlemen, I would please request you all to join us for another few minutes while we're waiting for the rest of the cast and crew, and of course we're going to till then get started with Mr. Arbaz Khan and ooh la la. All waiting for absolutely an honor for all of us, ladies and gentlemen, to get things started in the next super few minutes. Ladies and gentlemen, बहुत excitement हो रही है हमें to hear about the written ticket. बहुत सारे ख्यालात आते हैं. करना तो करना मैं इधर करूँगा इधर सर लोग आते हैं सर यहाँ पर देखें ना राइट थैंक यू. Ladies and gentlemen, Adrian Salman and Ruslan Mumtaz, please. Such an honor for us to have both of you here, and I'm going to request you to kindly join Mr. Arbaz Khan and Dev Sharma ji here. Yes, you're like वहाँ मुझे ये करा अभी देखिए. Ladies and gentlemen, and the leading lady of the film, may we please welcome the very lovely and gorgeous Gurleen Chopra. And what are you welcome to you, dear ma'am? Yes, yeah. सर सेंटर A wholehearted welcome to each and every one of you, ladies and gentlemen. यहाँ पे जिस पल का हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे दोस्तों, वो पल अब बिल्कुल आ गया है. And of course, that is my dream, by the way. So we're so delighted to have the entire, ready? Can I have a louder yes? Yes. Thank you very much to all our friends from the media. Let's quickly get started with the one. अब कैप्टन ऑफ द शिप हैं अभी,
और थोड़ा सा निशांत और थोड़ा सा आप सारे राज को भी फाश कर देना. Absolutely an honor for me. I mean, look at your smile, it's so dashing. We really look forward to having you on the big screen, of course. And definitely, जरूर चाहूँगी आप हम सब से towards the beginning, you know, you have to really open this for us, and you know, it's the good luck. And Arbaz Khan was also, you know, the first gentleman who stepped in here. So सारे जो शुभ रास्ते आज से शुरुआत हो गए हैं. And I'm going to request our captain of the ship to kindly request Arbaz Khan for a few words शुरुआत में. उनसे हम कह सकते हैं सर? बिल्कुल, हमारी शुभ शब्द अरबाज खान से. हमारी फिल्म है रिटर्न टिकट, और इस फिल्म के हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं अरबाज, तो इनका कैरेक्टर है मनमोहन का, जो स्ट्रगल कर रहे हैं और इनके स्ट्रगल से कैसे हमारी जो मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट है उसको कैसे इंसाफ मिलता है, तो उनके बारे में थोड़ा सा अरबाज जी बताएंगे कैसे क्या है. तो अरबाज जी प्लीज. गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आने का. सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि निशांत जी मेरे पास करीब कुछ 6 महीने पहले आए थे एक स्क्रिप्ट लेके, जो अलग ही स्क्रिप्ट थी, अच्छी थी, लेकिन आई थिंक सम रीज़न वी कुड नॉट डू दैट फिल्म. आई थिंक कोविड भी बीच में बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो पोस्टपोन हो गया. आई थिंक ही विल स्टिल कंसिडर दैट प्रोजेक्ट. देन ही केम एंड मेट मी फॉर दिस सब्जेक्ट, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. और इसमें जो कहानी है एक बहुत ही आज के, मतलब वेरी कंटेम्प्रेरी इन द सेंस दैट टुडे अ टॉपिक लाइक दिस नीड्स टू बी टच्ड, एंड इट हैज़ बीन हैंडल्ड ब्यूटिफुली. एंड इट्स अबाउट अ रेप विक्टिम दैट इवेंचुअली गेट्स जस्टिस, एंड टाइम इज नॉट द फैक्टर इन दिस, बट justice delayed is considered justice denied. But in this case, it happens, and it's a beautifully well woven script and some interesting characters in it, and I play one of those interesting characters, and I'm really looking forward to this film. And I wish the director all the very best. I'm sure he's going to do a great job. Mr. Arbaz Khan plays the protagonist and plays the most important character in the film. One Return of the Ticket. most important. There are all other After 30 important years. characters here. उन सबका भी introduction right now होगा. Ladies and gentlemen, I'm going to go the same way they are seated. Let me please welcome Mr. Dev Sharma here. The black and white guy, and I'm truly excited to welcome the rock star in the house, Adyan Saman, right after this. What a brilliant character you played. We're going to talk about that. Dev, how are you doing? Dev, आपका तो नाम ही देव है. जी. तो जब भी हम शुभ कार्य कोई भी शुरू करते हैं, वैसे भी start by taking the name of the Almighty. We'll start with your name. How are you doing today? I'm doing really good, and thank you so much for coming, guys. आप लोग हमेशा डटे रहते हैं हमारे साथ, तो सबसे पहले आपका साथ होना जरूरी है. और कहना चाहूँगा आप सबको, पहले बधाई देना चाहूँगा. हैप्पी लोहड़ी, मकर संक्रांति, और उत्तरायण भी है आज. पतंग उड़ाई थी आज अध्ययन ने सुबह. Yeah, so my character is very interesting. The name of this character is Kunal, और बहुत easy है अपनी एज का कैरेक्टर प्ले करना. So that part is sorted. But there is another part जो मुझसे करीब 30 साल, if I'm not wrong, निशांत जी 30 साल बड़ा है, और वो मुझे जब प्ले करना होगा तो बहुत चैलेंजिंग होगा. और आई एम ग्लैड दैट निशांत जी हैज दैट विजन ऑफ थिंकिंग ऑफ मी शूटिंग दिस कैरेक्टर. तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मजा आएगा करने में. और निशांत जी के बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है. मैं इन्हें मेरी पहली फिल्म जब यारियां रिलीज हुई थी तब से जानता हूँ, और इन्होंने हमेशा अच्छे प्रोजेक्ट्स को लेके मुझे अप्रोच किया है. तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी फिल्म का पार्ट बन रहा हूँ. थैंक यू सो मच सर. Thank you very much, Dev. And whenever you feel that, you know, finding it difficult, like Dev, Exactly. there's nothing which can't be possible for you. So, I mean, what a powerful name. Absolutely an honor. And now, of course, on to be with us here on stage. And he is the latest, youngest icon in the country for all the positive acting that you know. Amazing work, commendable work. We just love watching you. Thank you so much. Thank you so much for having me, guys. Good evening. I'm very honored to be a part of this project, of course. When sir came to me with the script, जैसे अरबाज सर ने कहा कि आज के ज़माने में ऐसे टॉपिक को छेड़ना बहुत ज़रूरी है, और हम कहीं ना कहीं कर्मा के बारे में भी बात करते हैं. और मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं. जब मेरे साथ वो सारी चीज़ें हुई थी तो मैं बहुत गुस्से में था, तो मैं चाहता था कि मैं बदला निकालूं. लेकिन माई फादर ऑलवेज टोल्ड मी दैट बिलीव इन कर्मा. जो होना है वो विल कम बैक. आई डोंट यूज द रॉन्ग वर्ड, बट अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो विल डेफिनेटली कम बैक टू यू अगेन. एंड दिस इज समथिंग दैट रियली रिलेट. रिटर्न टिकट सबका होता है लाइफ में.
So I'm looking forward to being a part of this. Being honored to work with Arbaz sir. Dave is a friend, Ruslan is a friend. So I'm looking forward, and I think it's going to be a very exciting journey. And he's an absolutely passionate director. I remember asking him, sir, कि मैं 32 साल का किरदार प्ले कर लूँगा, जब when I have to play 50 or 60 ये कैसे प्ले करूँगा और मेकअप कैसा रहेगा, तो he went into this entire detailed narration of how I'm going to do this. So I think he's absolutely passionate and absolutely clear with his vision, and that's what an actor requires today. So all the best to the entire team and all of us, man. Thank you for having me here. Wonderful. Wow, everything is already, all the homework is done. I think I must say, ladies and gentlemen, हम सब लॉकडाउन घर में बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, पर इन्होंने तो सब कुछ कर लिया, अपना कंप्लीट परसेप्शन भी कर लिया। 30 साल बाद आप कैसे देखेंगे? क्या बात है? I mean, so much of homework done. Come on, ladies and gentlemen, everyone in the room, can we hear a loud round of applause for all of them? And request yet another actor who belongs to the family of legend, right from Arbaz sir, who belongs to the family of legend, and what a great feeling, you know, to having seen, you know, your dad, you know, Salim Khan sir work, and of course we have the gentleman who is here with us. Ladies and gentlemen, may we please put hands together for Ruslan Mumtaz ji. And of course, sorry, the name Mumtaz se wo ji aata hai, so you know, because you know of the beautiful legendary figure. How are you doing today, sir? Good evening, everyone. Thank you so much for being here. So Nishan ji, when he offered this part to me, obviously मैं मतलब वैसे भी यंग लगता हूँ, और अगर कोई डायरेक्टर मुझसे बोले कि you need to play a 60-year-old character, तो मैं सोच रहा था कि ये मैं कैसे करूँगा. So it's a big task on us as actors and on him to even visualize something like this. I said yes because it is a big challenge, and I thought, you know, it's time to take challenges. Every actor is doing it, and we must too. After that, I come to know Adhyan is doing it. He's a dear friend. Gurleen I'd worked with, she's doing it. And then just the icing on the cake is Arbaz bhai. Yay! If Arbaz bhai says yes to this project, because you know, everybody knows the kind of work he's done, तो अभी तो कुछ टेंशन लेने की बात ही नहीं है. I think we'll surely sail. Wonderful, wonderful. And of course, I must mention, you know, Adhyan Suman, who also belongs to the who's getting the character of a lifetime, and Gurleen, your life is gonna change after this wondrous character. Can I please request you to be here with us? You're looking absolutely stunning. Thank you so much for coming. सबसे पहले तो मैं निशान जी का थैंक यू कहना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे ऊपर ये ट्रस्ट किया कि मैं इस कैरेक्टर को निभा सकती हूँ. इस कैरेक्टर के 2 शेड्स हैं. एक, जब वो 17 साल की लड़की होती है, तब उसने कैसे अपनी लाइफ को देखा और क्या क्या उसकी लाइफ में हुआ, और फिर वही लड़की एज के साथ जब 50-55 की हो जाती है, उसकी सारी लाइफ का एक्सपीरियंस. और ये जो कैरेक्टर है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, जिसके अंदर बहुत पेन है, जो उसके साथ लाइफ में बुरा हुआ. सो ऑल दीज थिंग्स की निशान जी ने कैसे मेरे ऊपर ट्रस्ट किया कि आई कैन प्ले दिस कैरेक्टर विद द एज ऑफ 70 एंड विद द एज ऑफ 55. सो इट्स रियली रियली चैलेंजिंग फॉर मी. मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही हूँ, और ये कैरेक्टर ऐसा ना आपने पहले कभी देखा होगा ना कभी सुना होगा. This is my promise with you. Thank you so much. Thank you so much, Nishan ji. Gurleen, I can only give you one. It's not a tip, but a suggestion. आपको research करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके फिल्म में जो भी है ना, इन सब के आप फेरे ले लो, and you will be an expert. Trust me on that. You absolutely belong this. And before I request our director to speak a few words, I'm also going to thank the rest of our cast, you know, for return ticket after 30 years. कभी सोचा है 30 years long romantic trip हो, कैसी trip हो, वो सब of course unveil करेंगे हमारे director साहब. But a humble thanks to our entire production team. Thank you very much to Om Shri Entertainment and Reality, Sheesh Chitra Entertainment, and Nishant Wood Productions in association with Ragai Films presents the very amazing forthcoming film. We are all staying in a digital world. We're all talking about artificial intelligence, and we all love to watch everyone who is here on stage. मेरी तो आंखें मैं blink नहीं कर रही हूँ because I don't want to miss out on. क्या राज है, मतलब क्या किया आपने इस पूरे लॉकडाउन के समय में, प्लीज हमें बताइए. और क्या राज है, मतलब क्या किया आपने इस पूरे लॉकडाउन के समय में, प्लीज हमें बताइए. और आज की नहीं है, इससे मैंने लिखा था आज से 10 साल पहले, और 10 साल से ये मेरे अंदर चीज़ें चल रही थी. और वो इन 10 सालों में धीरे 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 चीज़ आप समझ सकते हो कि 10 साल की जो जर्नी होगी वो कैसे जर्नी होगी. तो
इसलिए जब भी मैं जिस एक्टर से मिला तो मैं बिल्कुल विजुअल क्लियर था कि मैं क्या करने वाला हूँ। और इसमें और भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनको यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, जो ये 4 फ्रेंड्स हैं जिसमें अभी आए हैं। एक अमित जी हैं, तो मैं चाहूँगा कि अमित जी आप ही स्टेज पे आइए और अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए कि क्या है कैसा। Thank you so much for coming. First of all, I'll say I need the blessings of all of you desperately because I'll be sharing the stage right now and then camera later on with these legendary actors. I need the blessings of all of you. Well, मेरा किरदार है, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ। Who's a very न्याय पसंद आदमी। शुरू से उसके जस्टिस में कोर्ट में जो भी कोई केसेस आए हैं, he's been very very prudent with all his cases. But जब बात खुद पे आती है तो things just change. And one more thing I want to add, that this is my 3rd film with Nishan ji. And it was not only the journey from 30 to 65, but yes, it was Nishan sir. I've worked with him before in past 2 films of his, and it was simply amazing, amazing, amazing to work with him. He's so precise, so clear with every single thought of his. And so looking forward for the 3rd film. Thank you so much. एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर और है जिसमें जो गुरलीन की मदर का कैरेक्टर कर रही हैं, असीमा जी। तो मैं चाहूँगा असीमा जी आप भी आइए और अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए। थैंक यू वेरी मच। तो अध्ययन जी, आप पटना से हैं, मैं पटना से हूँ, रिश्ता नहीं निकाल रही। मैं ओवरब्लेम्ड हूँ क्योंकि एक तो क्या होता है, एक एक्टर जब कैमरे के सामने आता है ना थोड़ा चार्ज हो जाता है, बिकॉज एक्टर नीड्स ऑलवेज कैमरा, सो आई एम इन फ्रंट ऑफ कैमरा। एंड आपकी माँ के साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, अंजना जी के साथ। और सबसे पहले मैं यहाँ जो लोग हैं, फॉर्मेलिटी ये है कि आपका स्वागत करती हूँ, धन्यवाद। और निशांत का कि मुझे ये कैरेक्टर के लिए बहुत सूक्ष्मता के साथ इन्होंने एक एक डिटेल्स को मेरे साथ शेयर किया कि कैसे एक लड़की, पूरी कहानी क्यों बताना, फिर फिल्म क्यों देखेंगे। पर हाँ, मैं एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कर रही हूँ, एक ऐसी बेटी की माँ जो रेप विक्टिम है। और बहुत बारीकी से इस पे काम किया गया है, जैसा कि सभी ने बताया है कि ये कैसे, जो कल ही मैं एक फिल्म देख रही थी कि बैक टू द फ्यूचर, तो ये फिल्म कुछ कुछ उसकी याद आप लोगों को दिला देगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यहाँ पे जब भी हमारे कास्ट हैं और जो भी आप लोग गेस्ट हमारे हैं और ये खूबसूरत मोहतरमा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मेरा नाम सिमरन आहूजा है और जैसे कि आपने कहा कि आप अभी पटना से हैं और आप कह रही थी मैं रिश्ता नहीं बना रही हूँ, लेकिन इस फिल्म से तो आपका जिंदगी भर का इतना गहरा रिश्ता हो जाएगा कि आप तो कहेंगे कि हम तो ऑलरेडी बंधन में हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है आपको सुनकर। एंड ऑफ कोर्स द फैक्ट जी उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, बुलाते हैं। जरूर सर। और मैं जरूर बुलाना चाहूँगी चिराग खान को, जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं फिल्म के। And we are awaiting the presence of Hindustan Bhau. And हम जरूर इनवाइट करना चाहेंगे हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर, if you're around, नितेश श्रीवास्तव जी। It was very hard for me, but सब स्मूथली चला गया। I'm very thankful for everyone. और अरबाज sir, really thankful for you to doing this project. Thank you so much. Actually, we are all very excited to see Arbaz Khan, sir. So, sir, जब मुझे पता चला you're coming here, because you know I know for a fact you know that I've been in touch with you. मैंने कहा नहीं एक सेकंड, वो प्रोड्यूसर है कि डायरेक्टर है? नहीं, वो एक्टर है। I said really वो एक्टर है? तो प्लीज इनसे एक और मेरा सपना है, मैं उन्हें सिंगर की तरह भी देखना चाहती हूँ। प्लीज कोई तो फ्रेंड्स ऑफ द मीडिया या कोई तो प्लीज make it possible somehow. But really Arbaz sir, we are truly delighted to watch you. No, गाने के लिए नहीं कह रही हूँ, no, अभी नहीं कह रही हूँ, वो आप लोग सेट्स पे कर लेना सब, okay, एंजॉय कर लेना। बट मैं जरूर कहना चाहूंगी we really want to watch you on the big screen as an actor, as a dashing actor, as a protagonist of the film. And who's playing the antagonist in the film? थोड़ा सा पूछ सकती हूँ कि नहीं?
Hoy, hoy, the rock star in the house. Again, up look, see that that's enough, yeah. You don't have to even speak. I mean, what a look you have, yeah. It's really God's grace. Would you like to say something more about? Come on. There's no point. Just wait for it. We just watch. As it is, we are watching you every day. मतलब पूरा time हम आप ही को देखते हैं. You know कहाँ पर देखते हैं? Of course, you know on our OTT platform. All right. We have our star here with us. Hindustan Bhau here with us on stage. हमारे हिंदुस्तान की शान है. कैसे हैं आप सर? And बहुत मजा आ रहा है. मैं आपको पहली बार देख रही हूँ. But you're like the golden man. तो आइए दोस्तों, come on, हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान भाव. क्या कहना चाहेंगे आप सर इस फिल्म के बारे में? पहला तो यहाँ पे सब बड़े बड़े दिग्गज है, मैं क्या बोलेगा? हाँ, बहुत छोटा इंसान है, मगर ये हिंदुस्तान ने इतना प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद है. बस बाकी ये मौका मिला है इनके साथ खड़ा रहने का, वही बहुत बड़ी बात है. जय हिंद. थैंक यू. वाह, मुझे लगा था हिंदुस्तान भाव है तो कुछ इधर डीन चेक कुछ तो होने वाला है, कुछ तो परफॉर्मेंस होगा. क्या बात है. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, it is time for us for the unveiling of the poster. But before that, Nishanji, what do you like to say? Everyone who's here with us, of course, for the unveiling, हम सब countdown देंगे यहाँ पर. Is there anyone else you'd like to invite on stage, please? जो हमारे OTT प्लेटफॉर्म के CEO हैं, राकेश जी हैं क्या? Sky 9, ladies and gentlemen, हमारी जो फिल्म है Return Ticket, after 30 years, shall be premiered on Sky 9. Come on, have you all put our hands together for Sky 9? आप सबका आने का यहाँ पे मैं बहुत स्वागत करता हूँ. निशान जी जो मेरे पास आए थे अपनी स्क्रिप्ट लेकर, तो उसमें जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लगी वो ये थी जर्नी ऑफ लाइफ. आप एक फिल्म में कभी भी 20 साल से लेकर 60 साल की जर्नी नहीं दिखा सकते. बस जब उन्होंने सुनाया कि किस तरह से एक रेप पीड़िता को उनका बेटा इंसाफ दिलाता है, ये खूबसूरत जर्नी मुझे लगी और हमने तुरंत इसको ओके कहा और ये रिजल्ट. बहुत बहुत शुक्रिया सर. जो यू नो Sky 9, वैसे हम कहते हैं हमेशा यू नो फीलिंग ऑन क्लाउड 9, तो Sky 9 सुन के ऐसा लगता है यू नो लाइक एक्चुअली आई एम फीलिंग ऑन क्लाउड 9. सो थैंक यू फॉर दिस वंडरस अपॉर्चुनिटी टू रियली गिव रिटर्न टिकट आफ्टर 30 years. दिस ग्रैंड अनवीलिंग जो हमारा लॉन्च हो रहा है आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर. सर और क्या कहना चाहेंगे अबाउट दिस वंडरफुल स्टार कास्ट जो है हमारे सारे सितारे Sky 9 पर आ रहे हैं इस फिल्म के दौरान? What do you like to say about all our superstars who are here with us today? मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी बेहतरीन अदाकार हैं, मैंने इनको देखा है, उनका काम आप सब भी जानते हैं अच्छी तरह से. और जो मेरा विज़न Sky 9 को हमारा जो विज़न हम लेकर आए हैं वो है मासेस टू क्लासेस. हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जब भी कोई बात होती है, चैनल की बात होती है, हर कोई कहता है नेटफ्लिक्स, अमेज़न, पता नहीं विदेशों की और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, सबकी चर्चा होती है. हम इसके लिए काम करना चाहते हैं, हम इसके लिए काम करना चाहते हैं. मैं सारे कलाकारों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनको पता था ये कार्यक्रम Sky 9 के लिए बन रहा है. इन सारे कलाकारों को पता था ये कार्यक्रम Sky 9 के लिए बन रहा है और इन्होंने इसके लिए हाँ बोला. ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि हम जैसे लोग जब उठते हैं या आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि किस प्लेटफॉर्म के लिए आप काम कर रहे हैं. जी जी. तो हमारा जो ग्रो है बहुत अच्छा है और लोग जो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा है. हमारे जो स्ट्रीमिंग शो रहे हैं आप उन्हें देखें, हमारे विज़न को समझें. हम कोई भी कार्यक्रम एरोटिक नहीं लेकर आ रहे हैं, हम बेहतरीन कहानियाँ लेकर आ रहे हैं. बेहतरीन कलाकारों को जो छोटे हैं जिनको मौका नहीं मिला उनको भी मौका दे रहे हैं और जो क्लासेस हैं वो आपके सामने खड़े ही हैं, उनके साथ हम काम कर ही रहे हैं. तो फिर धन्यवाद आप सबका इस खूबसूरत शाम को और हसीन बनाने के लिए. और Sky 9 और आप मिलकर आगे बढ़ते हैं
और हमारा एक सिंपल सा विजन है कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं जिसमें गांव के भी कलाकार को मौका मिले। इसके लिए हमने रीजनल्स काम किए हैं और अभी हमने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था खजुराहो का, 130 देशों में लाइव टेलीकास्ट किया और उसमें हमने बुंदेलखंडी, मणिपुरी भाषाएं, आप हमारा ऐप डालेंगे तो मणिपुरी फिल्में हमें आती हैं, उसमें आसामी फिल्में आती हैं, पंजाबी फिल्में आती हैं, पंजाबी मतलब हर लैंग्वेज को हम आपको प्राथमिकता दे रहे हैं। और उसके अलावा हम वो प्लेटफॉर्म भी लेकर आ रहे हैं कि आप कम से कम आने वाले समय में हमें इतना मजबूत करें कि हम Amazon और Netflix के साथ कंपटीशन कर सकें। Absolutely, God's grace with return ticket. Absolutely, everything will really fall in place. Well, ladies and gentlemen, 2020 was all about creativity, innovation. हमारे राइटर को पता नहीं क्या ख्यालात आए कि उन्होंने एक ऐसी फिल्म लिखी जो अब तक कभी क्रिएट नहीं हुई थी। मे बी सर आप तो हमारे आज रॉक स्टार बन गए, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हमारी जो ब्यूटीफुल कास्ट एंड क्रू है सभी लोग बिल्कुल वक्त पर आए थे और आप ही का इंतजार था, लेकिन आपने क्या बेमिसाल जिस पर सब कुछ निर्भर होता है एंड वी रियली गिव द एंटायर क्रेडिट टू यू। क्या कहना चाहेंगे सर इस ब्यूटीफुल फिल्म के बारे में? We're just making an attempt to make the things feasible, and there's the most heinous crime which has already been taking place across the globe. We're just trying to portray some of the things which at least can help us in preventing these acts. Our attempt is only this, and especially this Me Too movement when it started. कई सारे ऐसे केसेस थे जो कि बहुत पुराने दबे हुए भी थे, जो कभी आज तक सरफेस पर नहीं आ सके थे। वो एक आइडिया मुझे जनरेट हुआ एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट आई स्टार्टेड दिस जर्नी। शायद मैं इस माध्यम से किसी भी तरीके से कुछ लोगों को भी अगर इंसाफ दिला सकूं, मेरे लिए बहुत बड़ी मेहनत सफल हो जाएगी। Thank you very much. What a wonderful cause, sir, and to put it in such a form, you know, which will really, and what a wonderful way of putting it on this platform. And of course, you know, we all love films. We all, बचपन से जब से पैदा हुए हैं, we all follow, you know, films and Bollywood has been so close to our hearts कि हम एक भी दिन Bollywood के बिना सोच नहीं सकते हैं. And you've written this wonderful. Well, ladies and gentlemen, and now is the most important aspect of the film. वैसे हम कैप्टन ऑफ द शिप बुलाते हैं डायरेक्टर साहब को, लेकिन डायरेक्टर साहब आपसे भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम सबको बिल्कुल खुश करते हैं, that is of course the producer of the film. जब बात होती है, what is that comes to your mind, यार? You are so good for everyone's ego, actually, you know. You make everybody feel so great. Yeah, I know that. But with me, you love everybody else also. निशान जी जब मेरे पास ये सब्जेक्ट लेके आए थे, तब जो खास बात इस सब्जेक्ट में है कि ये, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, कि बड़ा आज के ज़माने में ऐसे टॉपिक को टच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें लोगों के साथ होती हैं जो दबी रह जाती हैं और उसका कुछ हो नहीं पाता, और उससे बहुत सोसाइटी में या लोगों के लाइफ में भी बड़ा दुख होता है। तो it's a story of a very, very brave family. In fact, the husband and the son, they both, and the daughter, they kind of become a support system for the mother who was once a rape victim, and how they fight this journey against the most toughest opposition to get justice for an incident that has happened like 30 years back. So it's very well written. Screenplay बड़ा interesting है, and characterizations बहुत अच्छे हैं. So it was like a no-brainer for me to, particularly the role that was offered to me was something that I could relate to also. So it was like a no-brainer for me to just come on board and get excited, and now I'm looking forward to the shooting. Simran. Yes, sir. हो गया. जब पता चला प्रोड्यूसर आया तो मैं थोड़ा सा डर गई थी, बिल्कुल. Come on, baby, please welcome Mr. Omar Sheikh. Sorry sir, but आपका नाम भी एकदम इतना dashing है, इतना शहंशाह जैसा है. So absolutely an honor, sir, for us to welcome you here. Thank you so much, Omar Sheikh, sir. So मैं जरूर कहना चाहूँगी आपके क्रू के बारे में. At first, thank you very much, अरबाज sir. आपने जिस तरह सिमरन कहा, मैं तो डर गई. वो डर वाले डर की तरह. Actually, thank you so much, Omar sir. Absolutely an honor for all of us to have you here. So the entire crew is here, और हम सब आपके इंतजार में थे for the grand unveiling to have the poster launch.
आप क्या कहना चाहेंगे? इतना खूबसूरत सा प्रोजेक्ट है सर, which is going on floors. फरवरी के महीने में इतना खूबसूरत सा जो मोस्ट अमेजिंग प्रोजेक्ट, मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट, हम सब और फ्रेंड्स विद द मीडिया और हम सब वेट कर रहे हैं फॉर द रिटर्न टिकट. आप क्या कहना चाहेंगे आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में? मैं तो एक लाइन में ही कहूँगा, ऑलरेडी आप लोगों ने सब कुछ कह चुके हैं. सबको थैंक्स कहूँगा. इतना सारा क्राउड हमारे यहाँ पे जमा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह. बस हमको सक्सेस मिले इसकी दुआ कीजिए, और कुछ नहीं. माशाल्लाह, आपके सर एक सेंटेंस में ही सारा जहान आ गया, और उससे ज़्यादा तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ. निशान जी, हमारे डायरेक्टर साहब कुछ कह सकते हैं, प्लीज़ कहिए सर. हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर नीतीश हैं क्या? ओके. हमारे और दूसरे कास्ट एंड क्रू जो हैं उनको भी मैं चाहूँगा कि इन्वाइट करना चाहूँगा. हमारे डीओपी महेश जी. जी सर. महेश आने जी. May we please have our DOP, Director of Photography, please. नीलम गुप्ता जी. Okay, Mahesh ji. We're going to invite the entire cast and crew, and then we're going to have only our main cast here on stage for the photo op. We'll go ahead for the unveiling after that. Ma'am, truly a hearty welcome. How are you? So we want to know, you asked him, is dad around? We want to know. Is dad around? He asked him, we want to know. Is he around? Yes, we want to know too. Thank you, sir. Sir, you can go ahead and invite the rest of the Mahesh ji, film ke bare mein aap kuch बताएं. Namaste, and thank you for having me on this film. When Nishan is a very, very old friend, we have not worked together. We talk on the phone many times about scripts, about films, etc., etc. And when this film did turn up and we said we'd work it together, the lovely part of it was we were supposed to shoot this film in Arunachal Pradesh, so which I thought was fabulous. To have such a lovely locale and background for a film that's very hard hitting. So primarily I think it would be a lot of fun to work on this project, and of course with this great crew and all these lovely actors all around me, so it should be fun. Thank you very much for having me here. Thank you so much for giving all the 5 stars to the creativity. Sir, smile मतलब हम वेट कर रहे हैं आपके मुस्कुराहट की, क्योंकि अनवील होने जा रहा है हमारा पोस्टर लॉन्च. So before we unveil the poster launch, I want to request you all to have a good semicircle. उसके बाद अधीन समन आप कहाँ भाग रहे हैं? Oh, thank you. Actually, you're the rock star, so you should be like, okay, going. अरे आप सब लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? I know हम सब सोच रहे हैं, maybe in between the lines, whatever I heard, imagine कर रही हूँ, but of course we truly have to wait for the return ticket to go on the floors next month, February 2021, and 2021 is truly gonna be the brightest with this most wondrous film on Sky 9, which shall be premiered in 2020. So this is the first time complete cast and crew को देख रहे हैं, the first time after the lockdown that we see the entire cast and crew who really assembled for a film. And Nishanji, the director, and of course Omar Sheikh sir. वैसे तो हमें पता नहीं था we'll have your presence today. No, I think this is all because of your presence. So thank you. जहाँ पर आपका presence होगा, जैसे सितारे पीछे हैं आपके, you will definitely be the most shining star. Thank you, ladies and gentlemen. Once again, please give it up and good luck to Return Ticket after 30 years. Simran, is it अभी जो और कास्ट हैं together? You're all one for the next couple of days, weeks, months. That's it, sir. That's all. So can we? Just where are you, Asif bhai? कहाँ हैं आप? Okay. That's it. That's it. Sure. Adya, now you're gonna help me in making a very good semicircle. Now you're gonna help me for that. Shukriya.
Can we have the main cast now? जस्ट एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी कास्ट दिख रहे हैं अभी स्टेज पे, ये सारे के वो भी ऐसा नहीं है कि जस्ट एक कैमियो के लिए आया और बस यूं ही था। जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो हर कैरेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो दैट्स व्हाई पता नहीं कहाँ भाग जाएंगे, तो आप प्लीज हमारे साथ मंच पर ही रहिए। I appreciate it. Thank you. Ladies and gentlemen, one more time. Thank you so much. Should we do the unveiling now, sir? At the count, we enjoyed our buying our audio visual. After that is the grand launch of the poster. Omar Sheikh, sir, the producer of a film is very, very important, sir. आपका poster launch ही इतना बड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके बाद का unveiling और launch, music launch, film launch कितना बड़ा होगा। मैं imagine नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे 10, sir, I want you to please announce 10, 9. 10 and 9 or only 10? 10, 9. All right. Come on, ladies and gentlemen, maybe you all put our hands together for them. 8, 7, 6. Okay, so I'm going to request the lovely lady. 5. No, sorry, that was a mistake. That was a mistake. No, absolutely. Let me tell you, I just loved your acting of the rock star. And I'm going to ask you more details when you go off the stage. So can we have 4 with you? 4. Wow, that was very sensuous. 4. I like that. And 3? 3. And ma'am, you are very important for us. Ooh. Okay, and now ma'am, please request everyone to kindly, I'm going to escort everyone to step down. Director साहब, आप 1 कहेंगे, लेकिन off the stage से. Please आइए. The most unique countdown ever, ladies and gentlemen. Can we please have lights off? And our director saab to say 1. चढ़ी वो खाली ही गई, पटरियां जंक्शन किसी दिमागों में दौड़ती रही, चुप थी, न कुछ बोली न चीखी, बस घाव खामोशी के घिस घिस कर जिस्म से अपने वो धोती रही। रास्तों ने टकरा कर रास्ते मोड़ दिए, उसको जाना था जहां वो मोड़ कैनवास पर किसी ने बनाकर यूं ही छोड़ दिए। पेड़ था आंगन में उसके, पेड़ पर शाखें भी थी हूबहू पेड़ से, पर बीज से मिलती न थी। ये उसने किसी को नहीं बोला और छोड़ दिया घर, बिन ताले खुले रहे दरवाजों के पट। मन में था उसके एक मौन विश्वास उसी गाड़ी का, जो छूट गई थी बरसों पहले रास्तों पर। जरूर हर एक हिसाब लेकर आएगी गुजरे सफेद सालों का एक दिन उसके निकट। शायद इसीलिए सिरहाने रखकर आज भी सोती है वो, बरसों पुराना टिकट, रिटर्न टिकट। देना सब कुछ, मीडिया कवरेज। Yeah, we all owe it to the press and the media. Thank you to all the friends from the media. May we please request our director, Nishant sir, and Omar Sheikh sir, the producer of Return Ticket, to be on stage with us. अच्छा, ऐसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रमाकांत जी हमेशा साथ में होने चाहिए। अच्छा, सबसे पहले प्रोड्यूसर का लिखते हैं कि डायरेक्टर का, मुझे बड़ी परेशानी हो। बिल्कुल, इसके लिए हम सब हैं। प्रोड्यूसर सर, थैंक यू सो मच। इसलिए आप लेट आए सर, because you knew we'll all wait for you. Absolutely. Thank you very much. Now before we go ahead, please, a last word. I didn't expect this, and I'm actually really looking forward. It's actually quite deep and very emotional, I guess. And because it is a very emotional subject, I'm actually a little overwhelmed looking at the poster. It's very, very intriguing. Sir, बहुत अच्छा बना है आपने, honestly, दिल से बोल रहा हूँ। Thank you. बहुत शुक्रिया। Ruslan, what do you like to say at the grand unveiling of the poster? Just the last word, please. So obviously we didn't know what to expect, क्योंकि ये पोस्टर हमारे साथ शेयर नहीं किया गया था, तो this was the first time I saw it too. And अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इनका विजन
निशान जी का विजन थोड़ा अलग है हमसे, बिकॉज आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। मी एंड रुस्लान थॉट कि वो जो इंस्टा पे जो ऐप आते हैं ना जिस पे लोग बुढ़े हो जाते हैं, आई थॉट हमारे 4-5 की फोटो ऐसे होंगे। No, because we really didn't know, but this is something else. ये हमारे इमोशनल कोशेंट से बहुत ऊंचा है, so we are part of a beautiful film, मुझे ऐसा लगता है। So looking at this woman with her back, I was taken aback. Let me just as simple as that. It looked really nice, and I guess it tells in just one picture. It tells a lot of the story. So it's lovely. वाह, गुरलीन के पास हम बाद में आएंगे। देव, पहले आप बताइए। आई एम कम्प्लीटली मूव यार। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ऐसा कुछ आज होने वाला है। मुझे ये आइडिया था कि कुछ धमाका होने वाला है, निशान जी ने बताया था। और इनकी पोएट्री मैं बहुत टाइम से सुनता आ रहा हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि निशान जी बहुत अच्छा लिखते हैं, पोएट्री भी फिल्मों के साथ साथ। थैंक यू। तो मैंने काफ़ी पोएट्री सुनी है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आवाज़ भी शायद निशान जी नहीं, अच्छा, तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला सुन के, और बहुत कुछ सीखने को मिल गया कुछ सेकंड्स के अंदर लाइफ के बारे में। और निशान जी, आपके लिए एक शेर कहना चाहूँगा जो मैंने कहीं सुना था, बहुत ही छू गया था मेरे दिल को, कि जो मौलवी साहब होते हैं हमारे मस्जिद में और दरगाहों पे, तो उन्होंने एक बार ऐसे ही तस्बीह को फेंक दिया। तो उनसे पूछा किसी ने कि आप तो अल्लाह की इबादत करते हैं, आपने तस्बीह को फेंक क्यों दिया? तो उन्होंने बोला कि बहुत ही ज़्यादा टचिंग है, मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है, क्योंकि मैं इसको फॉलो करना शुरू कर चुका हूँ कि उसका नाम गिन गिन के कैसे लूँ जो बेहिसाब देता है। तो निशान जी, मैं चाहता हूँ कि आपको भी बेहिसाब मिले, हम सबको इस फिल्म के जरिए बेहिसाब मोहब्बत, बेहिसाब प्यार और बेहिसाब सक्सेस मिले। थैंक यू सो मच। And now the lovely lady. Wow, the only one in the film. How does it feel? Oh my God, Gurleen. You know, for now, just don't think about the story, but just think, how do you feel about the grand poster launch? Amazed, seriously, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। I'm shocked, और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारी पूरी मूवी की जो स्टोरी है इस पोइट्री में बयान करती है। यही स्टोरी है, यही पेन है, यही दर्द है, और यही इस लड़की की जर्नी है। Thank you निशान जी so much. Thank you Omar जी. Thank you for trusting me for this role. दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो छूट गए थे, जो उस समय नहीं थे, मोनिका और आसिफ। प्लीज स्टेज पे आएंगे। May we please welcome you, Miss Monica, and one more person, please. आसिफ, तो ये फिल्म का नरेशन मुझे डायरेक्टर्स ने दिया था, निशांत का डायरेक्टर हैं, और एक बहुत ही इमोशनल, हार्ट रेंचिंग स्टोरी है। एक फैमिली के बारे में, एक औरत के बारे में, उसकी जो लाइफ में जो हुआ है और जो इनजस्टिस हुआ है उसके साथ, और कैसे उसके साथ उसने कई सालों तक अपनी ज़िंदगी बिताई है, और उसकी वजह से उसके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी कितनी इफ़ेक्ट हुई है। और एक स्टेज के ऊपर फैमिली में पता चलता है कि क्या इंसिडेंट हुआ है, और हाउ द फैमिली यूनाइट्स टुगेदर एंड ट्राइज टू गेट जस्टिस ऑन अ वेरी वेरी सपोजिटली, मतलब जिसमें सोसाइटी में हम लोग जिस चीज़ को टैबू भी मानते हैं, और लोग मतलब ओपन होने में डरते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस जो फेस करने पड़ेंगे सोसाइटी के, उसको फेस करते हुए हाउ द चैलेंजेस आर मेट एंड दिस फैमिली फाइट्स एंड अल्टीमेटली ट्राइज टू गेट जस्टिस। तो इट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और जो पार्ट मुझे दिया गया है बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। जी जी जी। हाँ, तो जैसे सोसाइटी के अंदर बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो अब बहुत सालों से, मतलब वी आर ऑल कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू get justice for a lot of things in a lot, and particularly for rape victims, sometimes this justice delayed also is justice denied. But at the same time, as long as there is any kind of a support system from the family, from the society, then most of these people who have the courage to come out in the open and get justice for themselves. So it's a very sensitive subject, very sensitive topic,
and it has been handled in a very, very nice, creative manner and woven into a very beautiful, interesting and in a way even entertaining story. जी तो एज एन एक्टर आई थिंक इट इज़ इस रोल में काफ़ी कुछ है ऑफर करता है मेरे लिए, क्योंकि इसमें एक रेंज ऑफ एज का भी है। मेरा कैरेक्टर 20-25 साल एक ही मतलब ग्राफ उसका है। So there is a small portion of my film where I'm playing a very younger man, and then a lot of the portion is of an older man, which I have not yet played in a long time. I don't think I've played a 60-year-old person in any of my films. So it'll be a very interesting, challenging, character to play. And with the help of the director, I guess I will understand how he wants me to portray it, and we'll convey the role. हाँ, तो ये सारे यंग लड़के हैं, टैलेंटेड लड़के हैं, इनके साथ एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है मुझे भी काम करने का, इनसे भी कुछ सीखने का, बिकॉज दे आर ऑल वेरी वेरी enthusiastic, talented, and there's lots to learn from them. So I look at it as an opportunity when I can work with all these energetic young actors, and they're all hardworking, and I'm really looking forward. I think we have a good team and a good bunch of actors who are very, I would say, charged and have got a lot to prove, and are really excited. Yeah, thank you. टिकट का सवाल है, एक बहुत ही इमोशनल कहानी है अबाउट द सर्वाइवल ऑफ अ रेप विक्टिम। इट्स एन इमोशनल फैमिली ड्रामा और मैं एक एंटागनिस्ट का किरदार प्ले कर रहा हूँ फिल्म में। ज़्यादा जो है अभी मैं अपने किरदार के बारे में कह नहीं सकता, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार इसीलिए है मेरे लिए प्ले करना, बिकॉज ए इट्स एन एंटागनिस्ट, बी बिकॉज एक एज ग्रुप दिखाया है हम लोगों ने, फ्रॉम बीइंग अ 30-year-old टू बीइंग a 65-year-old. So it's going to be a very difficult task for me to play this. ये किरदार मैं पहली बार ऐसा करने वाला हूँ कि मैं एक 65 साल का आदमी प्ले करने वाला हूँ. So it's very very interesting and very intriguing for us. और जिस सेंसिटिविटी से आई थिंक निशान सर ने इवन द पोस्टर लॉन्च को हैंडल किया है, जो पीछे बैकड्रॉप था, एक पोइट्री थी, द पोस्टर इज सो ब्यूटीफुल, एज अरबाज सर सेड कि एक बैक शॉट है लड़की का, एक पेंटिंग है लड़की की, उसने सब कुछ कह दिया. So I'm really hoping that people connect with the film. I'm looking forward to start filming for this. जी, मैं हूँ नहीं तो मैं देव मेरे फ्रेंड हैं, रुसलान मेरे फ्रेंड हैं, अरबाज सर को ऑब्वियसली मैं पहले से जानता हूँ, और सबके साथ आई एम श्योर काम करके बहुत अच्छा लगने वाला है. जब आप दोस्तों के साथ काम करते हैं तो आपकी केमिस्ट्री कुछ अलग ही होती है, बिकॉज आपका एक तरीके का कंफर्ट लेवल होता है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद देम. ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो दौर चल रहा है, आप एक तो कर चुके हो, सेकंड में कैसे ये नो, आई थिंक OTT ने बहुत लोगों को मौका दिया है. ऑब्वियसली मेरी शुरुआत फिल्मों से हुई और मैं हमेशा फिल्में करना चाहता हूं, लेकिन जहां तक फिल्मों का सवाल है, OTT का सवाल है, आज जो एक बीच का दीवार थी वो अब टूट चुकी है, और आश्रम की वजह से लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे. आश्रम बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल शोज़ ऑन OTT प्लेटफॉर्म. अभी मेरे कुछ 13 शोज़ OTT शोज़ मैंने साइन किए हैं, तो लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं मुझे OTT प्लेटफॉर्म पर, और मेरे गाने हैं, बहुत कुछ हो रहा है. बट अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई एम वेरी थैंकफुल कि Amazon, Netflix, Sky9, ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स हैव गिवन एक्टर्स लाइक अस अनदर लाइफ. हमें मौके दिए अलग अलग किरदार प्ले करने के लिए. आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल. थैंक यू. फिल्म का नाम है रिटर्न टिकट, 30 साल बाद, जैसा कि अभी आपने सुना. और फिल्म बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट को लेके बनाई जा रही है. रेप विक्टिम के ऊपर एक फिल्म है, और हमारे देश में कोशिश करने के बावजूद ये चीज़ें कम नहीं हो पा रही हैं. शायद इस फिल्म के ज़रिए एक इमोशनल जर्नी जो हम दिखा रहे हैं, लोगों की सोच में थोड़ी जो है बदलाव आएगा कि नहीं यार, हर इंसान की एक पर्सनल स्पेस होती है, हर इंसान की एक डिग्निटी होती है, हर इंसान की एक इच्छा होती है. उसके अगेंस्ट जाके उससे कभी भी कोई भी काम ज़बरदस्ती नहीं कराना चाहिए. तो ये फिल्म इस बारे में है. और रही बात मेरे किरदार की, तो जो मेरा यंग वर्जन है, जो कि अरबाज भाई और श्वेता जी का बेटा बना है, वो है कुणाल, जो मैं अपनी एज प्ले करूँगा. और जो मेरा ओल्डर वर्जन है, वो हम जो 4 दोस्त हैं, अध्ययन में, रुजदान और अमित, तो वो किस तरीके से बहुत ज़्यादा रिवील हो जाएगा.
तो इस तरह की कुछ फिल्म है, मैं ज़्यादा बताऊंगा तो अभी गड़बड़ हो जाएगी। जस्ट द बिगनिंग। मेरी जितनी हाइट है इससे और ट्रिपल हाइट कर लीजिए, वहाँ देखता हूँ मैं OTT प्लेटफॉर्म को, क्योंकि जिस तरह का ये माहौल हो गया है कोविड की वजह से, हम लोग नहीं जा पा रहे हैं थिएटर में मूवीज़ देखने के लिए, लेकिन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने ऑडियंस को हमेशा एंटरटेन करते रहें। और ये एक ऐसा माध्यम है OTT जो हमारे ऑडियंस को उनके टेंशन, उनके डिप्रेशन, उनके सारी परेशानियों से दूर करके उनको एक एंटरटेनमेंट देता रहे, उनको एक सीख देता रहे, उनके साथ कुछ ना कुछ इन्वॉल्व रहे, जिससे कि जो एक मेंटल प्रेशर होता है इंसान के अंदर जब काम नहीं होता है, जब हम बाहर नहीं जा सकते हैं, जब हम इस तरीके के प्रोसेस में होते हैं कोविड की वजह से, तो एटलीस्ट वो अपने मूड को लाइट रख सकें और एंटरटेन हो सके साथ साथ। तो OTT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई कलाकार जी कहीं स्पेस कम हो जाएगा या नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और जैसे कि बात की जाए अगर राजनीति फिल्म की, तो मुझे लगता है मल्टी स्टारर फिल्म में मैंने उससे अच्छी फिल्म नहीं देखी आज तक, जिसमें कम से कम 150 किरदार थे और हर किरदार का एक स्टार्ट था, एक जर्नी थी और एक एंड था। तो इसी तरह यहाँ पे, और मैं तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हूँ क्योंकि आई नो व्हाट आई एम प्लेइंग, और उसका कितना जर्नी है और वो कैसे इंसाफ दिलाता है अपनी माँ को। तो और ऐसा नहीं, आई थिंक एक्टर्स ऐसा नहीं सोचते हैं कि उनका स्पेस कम हो रहा है या कुछ, जो उनका किरदार है वो उसे अच्छे से निभाने की कोशिश करते हैं बस। जी थैंक यू। जी मैं यही कहूँगी कि बहुत चैलेंजिंग किरदार है ये, और एक लड़की की जर्नी है 17 इयर्स की एज से लेके 55 इयर्स की एज तक। उस लड़की के साथ क्या क्या होता है और क्या हुआ उसके साथ, क्या मिस हैपनिंग हुई, कैसे वो रेप की विक्टिम बनी, सो उसका पेन, और इट्स अ यू कैन से इट्स अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उस लड़की के अंदर, बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा पेन है, जो वो 30 साल तक अपने हस्बैंड से छुपाती है। अपने सके बच्चे को वो प्यार नहीं करती है और वो क्या चाहती है कि वो उसको मार दे। सो इट्स ऑल अबाउट दैट गर्ल्स पेन। उस लड़की की एक पेन की जर्नी है 17 साल से लेके 50 साल की उम्र तक। फर्स्ट टाइम ये कहानी आपके पास आई, क्या रिएक्शन था, क्या माइंड में आया ये कैरेक्टर के बारे में? मुझे लगा कि इट्स टू अर्ली फॉर दिस काइंड ऑफ रोल, बट निशान जी ने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिखाया कि नहीं गुरलीन, इसमें 17 साल की एज है तुम्हारी, फिर उसकी जर्नी शुरू होती है धीरे 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 धीरे, और कैसे वो 50 साल की उम्र में जाके उसको इंसाफ मिलता है। सो मैं बहुत लकी हूँ, निशान जी ने मेरे ऊपर वो ट्रस्ट किया एंड उनकी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे ये रोल ऑफ़र किया। सो आई थिंक ऐसा रोल आपको लाइफ में एक बार ऑफ़र होता है और आप बहुत लकी होते हो अगर आपको ऐसा रोल ऑफ़र हो जाए। सो लाइफ टाइम मैं बोलूँगी कि ये मेरे लिए एक अचीवमेंट वाला रोल होगा। जैसे कि आपने कहा 50 प्लस एज है, वही मैंने वही बोला था, लेकिन उसमें क्या था कि जो उसका प्लस पॉइंट था कि वो 17 साल की भी है। सो पहले वो 17 साल की होती है, फिर वो 20, 30, 40 एंड फिर वो 55 की हो जाती है। सो ये नहीं कि 55 ही है मूवी में, उसकी जर्नी स्टार्ट ही 17 साल की एज से होती है। सो मेरे लिए 2 रोल्स हैं, एक 17 साल का और एक 50 साल का। काफी फास्ट कहानी आप पे है। ऑफ कोर्स इस लड़की की कहानी है रिटर्न टिकट, जो उसको 30 साल बाद इंसाफ मिलता है। सो अरबाज जी इज़ प्लेइंग माई हस्बैंड, देव शर्मा इज़ प्लेइंग माई लाइक जो, और ये सब जो 3-4 लड़के हैं, कैसे उस लड़की के साथ वो क्या होता है, और पूरी स्टोरी में आपको बता दूंगी तब मूवी में क्या देखेंगे। लेकिन एक लड़की के दर्द की कहानी है 17 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक, उसकी जो पेनफुल जर्नी है। आजकल OTT ही चल रहा है, क्योंकि कोरोना एंड लॉकडाउन की वजह से हम लोग थिएटर्स में तो जा नहीं सकते। सो OTT वालों के लिए बहुत गोल्डन चांस है, उनको ये प्लेटफॉर्म हमको मिल रहा है काम करने के लिए, और ये बहुत जल्दी सबकी मोबाइल्स में भी हम लोग आ जाते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर उमर जी, निशान जी फॉर गिविंग मी दिस ब्रेक एंड ट्रस्टिंग मी कि मैं ये किरदार को बाखूबी निभा सकती हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है निशान जी। मेरा कैरेक्टर तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, जब आप लोग मूवी देखेंगे तब आपको पता चलेगा। बेसिकली ये मूवी लाइक बेस्ड है एक लेडी पे, राइट, जो भी हमारे सोसाइटी में केसेस होते हैं और उनको इंसाफ नहीं मिलता, उनको जस्टिस नहीं मिलता है, तो उस पर ये बेस्ड है स्टोरी। आप जब मूवी देखेंगे जब आपको पता चलेगा। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि लाइक आप जो भी करते हैं, जो भी गलत करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं,
उसका आंसर, उसका भुगतान आपको यहीं भुगतना पड़ता है, राइट। तो ये स्टोरी कुछ इसी तरह है। और रही मेरे कैरेक्टर की बात, सो आई डिडंट वांट टू डिस्क्लोज राइट नाउ। आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। थैंक यू। हर प्रोड्यूसर, हर इंडस्ट्री वाले ने ना ऐसा फिल्म बनाना ज़रूरी है, लोगों तक अच्छा मैसेज पहुंचाओ, समझा। अच्छा मैसेज पहुंचा रहे इन लोग। जो मैं इतना टाइम से जो वीडियो बना के बोलता हूँ ना कि कुछ तो ऐसा कानून निकालो जो हमारे माँ बहनों को ना खुलेआम फिर घूमना पड़े। नहीं तो ये साले जो दरिंदे जो माँ बहनों का रेप करते हैं ना, बेटियों का करते हैं, वो कुछ टाइम के बाद चूतिया लोग छूट के आते, फिर कोई ना कोई बेटी किसी की शिकार होती है, समझा। तो ये बहुत अच्छा मैसेज दे रहे। अभी तो करना पड़ेगा ना, बुलाया तो करना ही पड़ेगा। हाँ, जो भी ऐसा करेगा उसको ठोकने का काम मेरा ही है ये फिल्म में। हाँ, जो भी अभी ये करेगा ना उसको मारने का काम मेरा है। बीच में आपने कह रहे थे कि मेरा नेगेटिव किरदार आ रहा है, बड़ा एक्टर है, यही तो कहीं नहीं, अभी कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, अभी कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे को मालूम है ना, अचानक में भयानक काम कर देता हूँ मैं। हाँ, ऐसा है। बाकी सब ठीक है ना, आप लोग खुश रहो। हाँ, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, क्योंकि आप लोग के वजह से दुनिया को पता चलता है क्या होता है वो। हाँ, तो पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, चलो, थैंक यू।